India's Myanmar quandary, its paradoxical policy. Paradoxical. What is the meaning of paradoxical? It means kharab. Paradoxical means virodhabhas, means two things, Two things. right? Like suppose India is a democracy and Myanmar is also a kind of democracy, but right now democracy is not going on into that. Quandary means Quandary means it is a kind of state of confusion where you are not able to decide what to do, right? So India's Myanmar quandary means with respect to Myanmar, India is not able to decide that what to do because India is a democracy, and in Myanmar what is happening that there is a military rule. Okay, there is a military rule continuing, right? So that is why India is confused. Okay, so this is the word, that is why. paradoxical. And Policy. further, so paradoxical policy means India, what India needs to do now, right? So this is what the meaning. July 31 and August 1 will be recorded as the crucial dates when the history of Myanmar's ongoing tragedy was written. Means July 31 and August 1 means ये two dates are very important. You can say in Hindi, English, both, whatever feels comfortable to you. मीन्स ये जो दो डेट हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत क्रूशल है. जब जो है म्यांमार की जो ऑन गोइंग ट्रेजिडी है वो लिखी जा रही थी, लिखी जा रही है, थी हाँ. Was written. हाँ, was written. Okay, I'll make you understand later. Yeah, so lead more. In the first case, the acting president of Myanmar, Mint Swe, announced the fourth extension of the emergency for another 6 months, which is in violation of the 2008 Constitution. 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 Samvidhan. हाँ. Okay, what is the meaning of this? In the first case, means the first case means जो present अभी जो current में president है म्यांमार के, उन्होंने announce किया announce किया जो emergency है अगले 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दी उसको, जो कि 2008 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वायलेशन है. correct, good. In the second instance, the military regime decided to release several political prisoners and even reduce the sentence imposed on Do Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, the deposed President Win Mint. What is the meaning of this? Is very easy. सेकंड जो दूसरी बात है वो जो मिलिट्री जो वहाँ की मिलिट्री है उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो कई सारे जो पॉलिटिकल मतलब प्रिजनर्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए, मतलब उनको रिलीज़ कर दिया जाए, और जो कि इनके द्वारा जो कि वो किए गए थे, डिपोज किए गए थे, हटाए गए थे पोजीशन से, है ना. उसमें ऑंग सांग सूकी को वो क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, है ना. तो क्या है, रिड्यूस दी सेंटेंसेस. तो रिड्यूस मींस डिक्रीज करना, कम करना. सेंटेंस मींस सजा, हाँ, पनिशमेंट, राइट. हाँ, सो दैट विल बी रिड्यूस. ओके, जो कि इनके ऊपर और जो ये जो है मतलब इनके ऊपर, ठीक है, वो हटा दी गई है. ठीक है, अब इनको क्या करेंगे आगे. Miss Suki was also moved out of prison to house arrest. House arrest. Means from the prison to the house arrest. House arrest, right? So that is how the sentence is reduced. Okay. However, these developments do not signal the dawn of a democratic and peaceful Myanmar. So dawn means start, or beginning, something like that, right? So you tell me the meaning. ये इस टाइप की जो मतलब मीन्स इस टाइप के जो स्टेप्स हैं, ये जो है डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल म्यांमार को एक आगे नहीं, These developments do not signal. ये इस टाइप के जो स्टेप्स हैं ये डेमोक्रेटिक, which types of steps? जो इनको मतलब जेल में डाला गया, फिर हाउस अरेस्ट किया गया ना. तो बेसिकली कैसा ईज कर रहे हैं ना सिचुएशन को. तो ऐसे जो मतलब ऐसे जो स्टेप्स हैं या जो ऐसे जो डेवलपमेंट हैं, तो क्या वो सिग्नल करते हैं कि वो पीसफुल म्यांमार के सिग्नल नहीं करते. हाँ, कि म्यांमार में पीस प्रिवेल होगी, फैलेगी, या मतलब वहाँ पे अच्छी मतलब डेमोक्रेटिक जो सरकार आएगी, राइट. गुड. Emergency and elections. The extension of the emergency further delays the elections proposed by the military.
मींस जो इमरजेंसी की वजह से इलेक्शन जो है वो डिले हो रहा है गुड। मिलिट्री के द्वारा। मिन ओंग हिलांग हाँ, लियांग। लियांग हाँ। द कॉप The coup, coup, हाँ, the coup or orchestrator orchestrator, justified the extension due to the failure to establish normalcy in large part of the country. So Min Aung Liang is a name of the person. Okay, and the meaning of COUP, how would you read it? Coup. So coup means सत्ता पलट देना, सरकार गिरा देना जैसे वहाँ पे, ठीक है ना। तो उसका ऑर्केस्ट्रेटर मतलब यही चीफ आर्किटेक्ट है कि जिसने सरकार गिराई, तो है ना। तो इसीलिए वर्ड यूज हुआ, क्या यूज वर्ड है? ऑर्केस्ट्रेटेड कूप कूप ऑर्केस्ट्रेटर। तो ये कौन है? मिन ओंग लियांग, यही है मेन पर्सन जिन्होंने सत्ता पलट दी है। तो इन्होंने ही मतलब जस्टिफाई किया है कि जो हमने एक्सटेंशन किया है इमरजेंसी का, ठीक है ना, वो इसी फेल्योर की वजह से किया है टू इस्टेब्लिश नॉर्मलसी। कि नॉर्मलसी मतलब जो है शांति वहाँ पे, है ना, या हालात जो है सामान्य हो सके ज़्यादातर हिस्सों में देश के। इसलिए ही इन्होंने मतलब ये इन्होंने एक रीज़न दिया कि इसी वजह से हमने इमरजेंसी लगाई है और एक्सटेंड करी है 4th टाइम, है ना। अंडरस्टूड? ओके। However, it is this pursuit of normalcy that has resulted in suffering with ACLED or armed conflict location and event data project, a aggregated data collection analysis and crisis mapping project, reporting that Myanmar civilians witnessed 2.5 times more violence than those in Afghanistan. So could you make out some sense out of this? This is easy, I think, right? So start from the start. So from here, however, it is this pursuit means मतलब पीछा करना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। तो pursuit of normalcy मतलब सामान्य हो जाए हालात, है ना, मतलब ऐसी चाह रखने के लिए जो मतलब एफर्ट करे जा रहे हैं। तो वही जो जिसका रिजल्ट दैट हैज रिजल्टेड इन सफरिंग, जो सफरिंग विद ACLED और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट, इससे सफ़र कर रहा है। मतलब जो ये नॉर्मलसी के लिए कौन से मतलब ये स्टेप्स ले रहे हैं, एक्सटेंशन किया इन्होंने किसका, इमरजेंसी का, है ना। तो उससे ये बता रहे हैं, है ना, यहाँ पे क्या बोले, जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि एक्सटेंशन इसीलिए किया है ड्यू टू फेलियर टू एस्टैब्लिश नॉर्मलसी इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, कि नॉर्मलसी नहीं है ना ज़्यादातर हिस्सों में देश के, तो हम इमरजेंसी को एक्सटेंड करें जिससे कि नॉर्मलसी ला सकें हम, है ना। तो फिर यहाँ क्या किया, हालांकि जो नॉर्मलसी मतलब लाने की जो कोशिश है, मतलब परस्यूट ऑफ नॉर्मलसी जो है, तो वो एक्चुअली ये चाहते हैं कि नॉर्मलसी आ जाए, बट उससे सफरिंग और ज़्यादा बढ़ गई है लोगों की। अब यहाँ पे क्या है, विद ACLED एंड द आर्म पर, ये उसका आगे चल के ये लिखा, फुल फॉर्म लिखा, राइट। तो ये क्या बता रहा है, एनालिसिस और मैपिंग करके प्रोजेक्ट ये रिपोर्ट कर रहा है कि म्यांमार में जो लोग हैं, सिविलियंस मतलब जो लोग हैं, विटनेस 2.5 टाइम्स मोर वायलेंस, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लो कि 2.5 गुना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है उनके साथ, जितना कि अफगानिस्तान में इस टाइम हो रहा है, उससे भी 2.5 गुना ज़्यादा म्यांमार के लोगों के साथ हो रहा है। ये इस एजेंसी ने रिपोर्ट करके बताया है। तो अगर ये इमरजेंसी में ये हालात हैं और ये इमरजेंसी लगा ही रहे कि नॉर्मलसी हो जाए, तो मतलब कितनी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि आप मतलब पढ़ रहे हो किस लिए, फेल होने के लिए। ऐसे तो कोई नहीं करता, राइट। सो दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। Understood fully? The military regime's relentless campaign includes an average of over 30 airstrikes per month in 2023. Very easy. What is the meaning of this? Means 30 airstrikes per month in 2023 means by military of Myanmar. Correct. अब वो मतलब हर महीने लगभग 30 एयर स्ट्राइक्स करते हैं। Surprisingly, the Tamada, the military of Myanmar. Military of Myanmar को क्या बोलते हैं? Tamada. हाँ, Tamada. Experts real control in over 30% to 40% of the territory, as an admission from the Burmese military and report of the Special Advisor Council for Myanmar. That's it. So what is the meaning of this? मीन्स ये टामाडो जो ये टामाडा जो एक्सपर्ट्स रियल कंट्रोल इन, जो मतलब टामाडा जो है, जो मिलिट्री ऑफ म्यांमार को टामाडा बोलते हैं, जैसे इंडियन आर्मी को इंडियन आर्मी बोलते हैं,
वहाँ की आर्मी को तामाड़ा बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो वहाँ जैसे लोग बोलेंगे अरे यार आर्मी से हम लोग बोलेंगे कि यार इंडियन आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है बॉर्डर पर, तो वहाँ बोलेंगे कि हमारी तामाड़ा बहुत अच्छा काम कर रही है, राइट। हाँ, तो 30 से 40% जो टेरिटरी पे कंट्रोल है वो इनके पास है। हाँ, मतलब जो पूरा कंट्री है म्यांमार, उसका 30 to 40% हिस्से पर ही इनका केवल कंट्रोल है। अच्छा। हाँ, As in admissions from the Burmese military। हाँ बर्मीज, तो मतलब इसका पहले नाम इसका बर्मा था। अच्छा, तो हाँ, बर्मीज मिलिट्री भी बोल सकते हो, या म्यांमारी मिलिट्री बोल सकते हो, या तामाड़ा बोल सकते हो, मतलब ये तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो एज इन एडमिशन फ्रॉम, तो एडमिशन मतलब मानना, मतलब एडमिट करना कि हाँ मतलब ये मानते हैं कि हाँ 30 to 40% में ही है। और एक जो रिपोर्ट है ये काउंसिल ऑफ म्यांमार की, उसके थ्रू ये मानते हैं कि हाँ हमारा 30 to 40% ऑफ द एरिया पर ही मेरा है केवल कंट्रोल, बस। हाँ, फिर क्या है, अ फैक्ट factious हाँ। national election। Then nobody will take the bike. She's a lady. National election would lead to the loss हाँ. of further credibility if it is conducted हाँ. only in third of the country। मीन्स Means- फैक्शियस मीन्स जो गुट वाले हैं ना, गुटबंदी, जैसे फैक्शन होता है ना, तो एक गुट, तो फैक्शियस तो मतलब गुटबंदी वाली। अगर जो नेशनल इलेक्शन होगा कि मतलब कुछ पार्टी इनकी साइड, कुछ पार्टी मिलिट्री का साथ देते हैं, तो इस तरीके से अगर इलेक्शन होगा तो वो किस तरीके जाएगा, तो विश्वसनीयता का और नुकसान करेगा। ये एज ए कंट्री में पूरे वर्ल्ड इसको देख रहा है ना कि म्यांमार में क्या चल रहा है ना। तो इंडिया का भी रिलेशन, तो इंडिया तो एक डेमोक्रेसी है, तो बेसिक अगर आप अच्छे हो तो अच्छे से ही दोस्ती करना चाहोगे ना। तो अगर कोई खराब होगा आप उससे दोस्ती नहीं करना चाहोगे, जो कि गलत जिसकी आदतें होंगी, राइट। तो वैसे ही ये भी चाहता है इंडिया की वहाँ पर भी डेमोक्रेसी प्रिवेल हो, तो हमारा रिलेशनशिप बनेगा, हमारी वैल्यूज जब सेम होंगी तभी तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, राइट। तो अगर वहाँ पे आप जो है बार बार एक्सटेंड कर रहे हो अपना, मतलब जो इमरजेंसी लगा के और मिलिट्री पावर एक्सटेंड करो वहाँ पे, तो इसका मतलब डेमोक्रेसी का लॉस हो रहा है ना। तो और अगर डेमोक्रेसी का लॉस, तो आपकी क्रेडिबिलिटी, मतलब आपकी सरकार की विश्वसनीयता, जो आपका सिस्टम है उसका भी तो लॉस हो रहा है इंटरनेशनल में, है ना। तो इसकी वजह से अगर ऐसे इलेक्शन कराओगे आप, तो वहाँ पर विश्वसनीयता का और ज़्यादा लॉस होगा, राइट। अंडरस्टूड।